गांधी जी आ चुके हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आज का यह समापन कार्यक्रम हम सभी लोग वंदे मातरम से शुरू कर रहे हैं। जो हमारे सेवा दल के पदाधिकारी हैं यहां पर शुरू करेंगे। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और हम सब लोग वंदे मातरम गाएंगे। सभा कक्ष सावधान, वंदे मातरम शुरू करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। साथियों, आप सब लोगों का स्वागत है। आज के इस समापन समारोह के शुरुआत में हम लोगों के बीच में नेतृत्व उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हम सब लोगों के नेता पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को। Congress President Sonia Gandhi ji, members of the Congress Working Committee, PCC presidents and CLP leaders, AICC office bearers, delegates of the Shivir, friends, I'd like to welcome all of you here today. We have been having discussions now for the last few days, and everybody, the leadership of the Congress Party has been taking part in these discussions. I was involved in some of the discussions. I went to all the rooms. And while I was listening to the discussions, all of you, and of course those discussions were held in closed rooms, so the people of our country don't know the level of conversation that was taking place, the type of conversation that was taking place, the intelligence of the conversation that was taking place, but I got to see it. And while I was watching this, I was asking myself the question, which other
political party in this country would allow this type of a conversation. A conversation where the senior most leadership is bluntly told, without holding back, without any hesitation, is bluntly told what the Congress party feels. I was thinking to myself, certainly the RSS and the BJP would never allow such a thing. In fact, many of our leaders, Arya ji is here. Many of our leaders who have come back have said to me exactly what the BJP allows them to say and doesn't allow them to say. Arya ji himself told me that as a Dalit in the BJP, he had no place. As a Dalit in the BJP, he was humiliated every single day. These are his words. And there are other parties, regional parties, and with all respect, even the regional parties would not tolerate the type of conversation that we have just had. And this conversation, this is not something new in the Congress. This didn't happen just yesterday or day before. We are attacked for it. Every day in the media we are attacked because we allow conversation inside our party. Every day we are attacked. But there is a reason. There is a reason we allow conversation. This party's DNA is a conversation between the people of this country. Doesn't matter where they come from, doesn't matter whether they're rich, poor, what community they're from, Hindu, Muslim, Sikh, Christian, anybody. This party has always provided a platform for a conversation, a platform where people can speak without fear, without worry. And that is what this party continues to do. Unfortunately, this is not how the politics of the country is progressing. The politics of the country now does not entail a conversation. It does not entail the expression of views. It does not entail the expression of feelings. Some days back, in Parliament, I made a speech where I said, India, Bharat, is a union of states. That is the line that is written in our constitution. India is not described as a nation. It is described as a union of states. Meaning, the states of India, the people of India, have come together to form the union. They have come together to form the union. And it is critical for the union of this country that the states and the people are allowed to have a conversation. Because the only alternative, and I say this with full responsibility, the only alternative to a conversation between the people of India is violence between the people of India. You can either choose to have a conversation between the people of India, or then you can choose to have violence between the people of India. And this conversation that takes place between the people of India, between the states of India,
The instruments of this conversation, the mechanism of this conversation are the institutions that the Congress party, that your great leaders, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Patel, Azad ji, Ambedkar ji, have helped us create. These institutions do not belong to any one individual. They do not belong to a political party. They belong to the union of India. They belong to every single person in this union. And today what we are seeing is the systematic destruction. The systematic destruction of the institutions that help India, help the states of India speak to each other. We see it, those of us who are in Parliament, we see it in Parliament House. Our mics are shut off, members are thrown out of the House, conversations are not allowed. We see it when the judiciary is pressurized. We see it when the arms of the election commission are twisted. We see it when the media is muzzled. And we say, okay, we lightly say that the conversation is being muzzled. But what we do not understand is the consequence of this muzzling. India does not understand it yet. Most people in this country do not understand it. Because the day this country's institutions stop working, the day this country stops speaking to itself, the day this country does not communicate with itself effectively, is the day that we will all be in very serious trouble. And you can already see the tension. It is there for everybody to see. You speak to the press people, they will tell you that we are muzzled. You speak to the political class, speak to the leaders, every single politician knows the word Pegasus. There is not a single politician in this country who does not know what Pegasus is. Pegasus is not a software. Pegasus is the method of silencing the political class of this country. It is not simply a software. It is the way to strangle. It is the way to strangle the political discussion in this country. And so this is what we are seeing. Now the question is, how does the Congress party respond to this? It's a question on all your minds. We see economic collapse. Some days back, the Prime Minister said, we are going to be exporting wheat. And then suddenly, a few days later, we are not going to be exporting wheat. We put a ban on the export of wheat. My friends from Punjab and the rest of the country know the impact of the farm laws. You know what the farm laws were designed to do, and you know the devastation and the pain that the farm laws caused to the people of Punjab. And had they not been stopped, what would have happened to Punjab? And you know, you spoke to me yesterday, you know what is happening in Punjab today and the feelings that are rampant in Punjab today. जो हमारे युवा हैं, आज हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है. नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की. आज अनएम्प्लॉयमेंट आज से ज्यादा कभी नहीं रहा है. और ये उनके आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है. क्यों? क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है,
जो रोजगार पैदा करती है, उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने और उनकी विचारधारा ने तोड़ दिया है। नोटबंदी, जीएसटी ये लागू करके और पूरा का पूरा फायदा 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देकर सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य को नष्ट कर दिया है। और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, देश का युवा रोजगार नहीं पा पाएगा। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। यूक्रेन में लड़ाई हुई है, आने वाले समय में इन्फ्लेशन जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा और जो हमारा, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते थे, खतरा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल जाए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है, बीजेपी जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। मगर हमारी भी एक जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी जो विचारधारा की लड़ाई है उसको लड़ने की है और जनता के साथ खड़े होने की है। हमारा शिकायत है, हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन, पूरी की पूरी बातचीत हमारी अपनी इंटरनल मामले में होती है। कौन सी पोस्ट किसको मिल रही है, इंटरनल हमारा फोकस रहता है। और आज के समय में इंटरनल फोकस से हमारा काम नहीं होने वाला है। हमारा फोकस एक्सटर्नल फोकस होना पड़ेगा। जनता की ओर हमें देखना पड़ेगा, जनता के पास हमें जाना पड़ेगा। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, देश के लिए। प्रेस में पूरा डिस्कशन कांग्रेस पार्टी की पोजीशंस के बारे में होता है। हमें बिना सोचे, चाहे हमारे सीनियर नेता हो, जूनियर नेता हो, कार्यकर्ता हो, हमें बिना सोचे जनता के बीच में जाकर बैठ जाना चाहिए। जो उनकी समस्या है उनको समझना चाहिए और जो हमारा पहले उनके जनता के साथ कनेक्शन होता था, जो कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन जनता से टूटा है, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उस कनेक्शन को हमें फिर से बनाना पड़ेगा। और जनता चाहती है, जनता समझती है कि कांग्रेस पार्टी ही यह काम कर सकती है। जनता समझती है कि कांग्रेस पार्टी ही देश को आगे ले जा सकती है। यह हमारी जिम्मेदारी है। और मुझे यह सुनकर कि कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, अक्टूबर में निर्णय लिया है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएगी, यात्रा करेगी और जो जनता के साथ कांग्रेस पार्टी का रिश्ता था और है, उसको एक बार फिर से मजबूत करेगी। यही हमारे लिए रास्ता है। और शॉर्टकट से ये नहीं होने वाला है। मैं बता रहा हूं,
जो सोचता है कि शॉर्टकट करके ये काम किया जा सकता है, ये काम शॉर्टकट से नहीं किया जा सकता है, ये काम पसीने से ही किया जाएगा, बिना पसीने नहीं किया जाएगा। और आप लोग कर सकते हो, आप में क्षमता है, हम सब में क्षमता है, और ये हमारा डीएनए है। हम पैदा ही जनता से हुए, ये संगठन जनता से ही निकला है। तो हमें एक बार फिर जनता के बीच में जाना है। About the Congress party, many things have been discussed about our economic policies, about our political positions, about youngsters, the future of India's youth, the weaker sections, farmers. We had all these discussions, and we have prepared papers that give us a clear direction on where we have to go. But I do feel that there are some things which are already in those papers, which I would like to repeat here, which the Congress party must think very seriously about doing. I've said that we must have a mass contact program where all of us, regardless of our age, our position, where all of us go to the people of India and spend not 1 day, 2 days, but months with the people of India. Understand what the people of India want and what the people of India are saying. Understand what the farmers want, what the laborers want. This to me is the first step. The second step is transforming the nature of the Congress party. Not the nature in terms of its thinking, not the nature in terms of its ideology, but its nature in terms of the way we do our work. 21st century is about communication. And if there is one area where our opponents outdo us, it is in communication. They have much more money than us, and they are better at communication than we are. So we must think about communication, completely reform our communication systems, and communicate with the people of India, with the youngsters, in a new way. This is a recommendation that has already been made. I'm just repeating it. I think the idea that certain positions, certain numbers of positions should be for younger people is a very important idea. I am not saying that there should be no older people, but I am saying that when it comes to DCCs, when it comes to BCCs, when it comes to our leadership, we should have a healthy mix of youngsters and seniors. And I think the time has come where we aggressively do this, where we aggressively put new DCCs, new BCCs. There are DCCs who have been there for 15, 20 years. We aggressively change these DCCs and BCCs and make them the pivot of the party, and make sure that they are young, dynamic, and fully trained in the ideas and the ideology of the Congress party, so they can take on the vicious propaganda and the divisive politics of the RSS. I also feel, and that has also been stated, that we must ensure the idea that one person per family should get a ticket. I know Venugopal has made a caveat to that, but I do think that it is very important that we
limit the number of family members that are involved in our organization. Let them work, let them develop, and then let them join the organization. But we must not have a situation where 5 or 6 or 7 members of a family are in the organization. So I think these things are of importance. From my perspective, I am your family. You are my family. I don't see you, और मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हम परिवार हैं, और मैं सिर्फ आपके नहीं, यहां 500-600 लोग हैं, मगर मैं हर कांग्रेस के नेता की बात कर रहा हूं, कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं. ये एक परिवार है, और मैं आपके परिवार का हूं. मेरी लड़ाई जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है, जो देश के सामने एक खतरा है, मेरी लड़ाई उस विचारधारा से है. जो नफरत ये लोग फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, इसके खिलाफ मैं लड़ता हूं और मैं लड़ना चाहता हूं. ये मेरे लिए, ये मेरी जिंदगी की लड़ाई है. मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि मेरे प्यारे देश में, हमारे प्यारे देश में इतनी नफरत, इतना क्रोध और हिंसा फैल सकती है. मैं इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं. हमारे खिलाफ बड़ी शक्तियां हैं. आरएसएस, बीजेपी का संगठन, आजकल हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस. ये आप मत सोचिए कि हम एक राजनीतिक पार्टी से लड़ रहे हैं. हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं. राजनीतिक पार्टी सिर्फ एक भाग है. हम हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन से लड़ रहे हैं. हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं. सच्चाई है. मगर मैं हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं और कांग्रेस के नेता को कहना चाहता हूं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है. कोई जरूरत नहीं है घबराने की, क्योंकि ये देश जो है ये सच्चाई को मानता है. ये देश जो है ये सच्चाई का देश है, और इस देश को बात समझ आ रही है. ये देश देख रहा है देश की हालत क्या है, देश को समझ आ रही है. तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं जिंदगी भर आपके साथ खड़ा हूं, और इस लड़ाई को आपके साथ मैं लड़ने जा रहा हूं. मैं इन शक्तियों से डरता नहीं हूं. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मैंने अपनी जिंदगी में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, 1 रुपया नहीं लिया है. मुझे कोई डर नहीं है. मैं बिना डरे मैंने भारत माता से 1 पैसा नहीं लिया है, और मैं सच्चाई बोलने से नहीं डरता हूं. मैं सच्चाई बोलने से नहीं डरता हूं. तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता से, यह लड़ाई हम सबकी लड़ाई है.
इस लड़ाई में हम सब शामिल हैं। मैं आपके साथ शामिल हूं। हमारे सब सीनियर नेता हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं। हम सब एक साथ मिलकर बीजेपी और आरएसएस के संगठन को और उनकी विचारधारा को हरा कर दिखाएंगे। कभी कभी हमारे जो सीनियर नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कभी कभी थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं। नॉर्मल बात है, क्योंकि देखिए लड़ाई आसान नहीं है। आप ये मत सोचिए कि ये लड़ाई आसान है। ये लड़ाई रीजनल पार्टी नहीं लड़ सकती, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। आपने देखा एक विचारधारा आरएसएस की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ लड़ रही है। बीजेपी कांग्रेस की बात करेगी, कांग्रेस के नेताओं की बात करेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करेगी, मगर रीजनल पार्टी की बात नहीं करेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि रीजनल पार्टी जो है उनकी जगह है, मगर वो बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि उनके पास विचारधारा नहीं है। अलग अप्रोच है उनकी। हमारी एक सेंट्रलाइज्ड एक अप्रोच है और हमारी विचारधारा की लड़ाई है। तो ये आसान लड़ाई नहीं है और ये राजनीतिक लड़ाई भी नहीं है। ये देश के भविष्य की लड़ाई है और देश को बचाने की लड़ाई है। और आपको दिखेगा, अभी यह लड़ाई शुरू हुई है, आने वाले समय में आपको दिखेगा हिंदुस्तान में आग लगेगी। मैंने कोविड की बात की थी, याद रखो, मैं बता रहा हूं, जितना ये इंस्टीट्यूशंस को तोड़ेंगे, जितना ही हमारे स्टेट्स के बीच में, धर्मों के बीच में, जातों के बीच में कॉन्वर्सेशन को खत्म करेंगे, दबाएंगे, उतनी जोरों से आग लगेगी देश में। मैं साफ बोल देता हूं। और कांग्रेस पार्टी का काम उस बातचीत को, उस कॉन्वर्सेशन को फिर से शुरू करने का है। कांग्रेस पार्टी का काम हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, उनकी रक्षा करने का है। यह हमारा काम है। यह कोई रीजनल पार्टी नहीं करेगी, बीजेपी नहीं करेगी, आरएसएस नहीं करेगी, कांग्रेस पार्टी ही करेगी। हमने कभी भी हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण नहीं किया। हमने कभी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को छुपा कर हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं डाला। आरएसएस और बीजेपी ये काम कर रही है, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस में नहीं, हर जगह ये अपने लोग डाल रहे हैं। और इससे जो कॉन्वर्सेशन होता है, जो बातचीत होती है लोगों के बीच में, वो खत्म होती है। एक तरफ बेरोजगारी, युवाओं को रास्ता नहीं दिख रहा है, महंगाई, और दूसरी तरफ आप हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हो। हिंदुस्तान के बीच में जो बातचीत होती है, कॉन्वर्सेशन होता है, उसको बंद कर रहे हो। जरूर आग लगेगी। और हमारी जिम्मेदारी है कि वो आग ना लगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता के बीच में जाएं और जनता से कहें कि आपको बांटा जा रहा है, आपको तोड़ा जा रहा है,
और इससे देश मजबूत नहीं होता है, इससे देश कमजोर होता है, इससे आपको हमें फायदा नहीं होगा, इससे नुकसान ही नुकसान होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है, हमारे कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, हमारे नेताओं की जिम्मेदारी है, और यह काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही सबकी पार्टी है। इस देश में कोई ऐसी जात, कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए। कोई है ही नहीं इस देश में। रीजनल पार्टीज कोई किसी जात की है, वो सब की नहीं है। यही एक पार्टी है जो पूरे देश की पार्टी है। तो मैं आपको यह कहना चाहता था कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम सड़क पे उतरेंगे, सड़क पे उतरेंगे और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से जैसे कांग्रेसी लड़ते हैं, पूरा दम लगा के हम लड़ेंगे। All of you came here and showed us the way forward. You gave us a direction. Leaders, senior leaders showed us, told us where we should go. And I think there is a lot of clarity in terms of where the Congress party has to go in terms of policy, in terms of thinking, what our positions should be, what our political positions should be. I think there is tremendous clarity that has come out of this discussion. In fact, you yourselves have told me that there is a lot of clarity that has come out of this discussion. I think that these discussions are very useful. And I think we should have these discussions much more often, much more systematically. It allows the Congress party to come together. It allows us to feel like a family. It allows us to talk to each other. And I think it helps us move forward with in a strong and dynamic way. So I'd like to thank all of you for coming here today. Namaskar. Jai Hind. Friends, now we are moving for an important item of this Shibir. I would like to request Ajay Makhanji, General Secretary in charge of Rajasthan and also one of the organizers of the Shibir, to read out the Hindi version of the Udaipur Declaration, which had been approved by CWC this morning. साथियों, इससे पहले कि मैं उदयपुर का नव संकल्प ऐलान पढ़ूं, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे 6 कमेटीज़ के 6 कन्वीनर्स ने विस्तृत रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्षा को सौंपी है और उसके बाद में उसमें से कुछ अंश इस डिक्लेरेशन के अंदर हिस्सा ले पाए हैं और रिपोर्ट वो कांग्रेस अध्यक्षा के पास में पूरी की पूरी रिपोर्ट जो भी समितियों ने करी है वो सारी की सारी रिपोर्ट है। उदयपुर नव संकल्प ऐलान 15 मई 2022 भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कोख से जन्मी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस असीम संघर्ष, त्याग और बलिदान की बुनियाद पर खड़ी है। करोड़ों देशवासियों ने कांग्रेस के नेतृत्व में जिस क्रांति का आगाज किया था, वह ब्रितानवी हुकूमत से आजादी लेकर अपना शासन और अपने संविधान के लिए तो था ही, उस संघर्ष के मूल में चौतरफा असमानता, भेदभाव,
कट्टरता, रूढ़िवादिता, छुआछूत और संकीर्णता को खत्म करने के लिए कवायद भी थी। देश प्रेम व बलिदान की भावना से ओतप्रोत आजादी के आंदोलन का आधार था सबके लिए न्याय। करोड़ों कांग्रेस जनों ने स्वतंत्रता संग्राम में जेल की अमानवीय यातनाएं सही व भारत मां की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी दिया। साल 1885 से 1947 तक 62 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की यह क्रांति भारत की आजादी के रूप में परिणत हुई। न्याय, संघर्ष, त्याग और बलिदान की इस परिपाटी ने आजादी के बाद अगले 70 वर्षों तक भारत की एकता, अखंडता, प्रगति व उन्नति का रास्ता भी प्रशस्त किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व उसके नेतृत्व ने कट्टरवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद व हिंसा का रास्ता अपनाकर भारत के बहुतालवादी व समावेशी सिद्धांतों को चुनौती देने वाली हर ताकत से लोहा लिया। भारतीय मूल्यों की रक्षा के इस संघर्ष में महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी व असंख्य कांग्रेस जनों ने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। सन 1947 में भारत को राजनीतिक आजादी तो हासिल हो गई, पर देश के सामने अनगिनत चुनौतियां थी। ना पर्याप्त अनाज पैदा होता था, ना उद्योग धंधे थे, ना सुई तक बनाने के कारखाने थे, ना स्वास्थ्य सुविधाएं थी, ना शैक्षणिक संस्थान थे, ना सिंचाई की सुविधा थी, ना पर्याप्त बिजली का उत्पादन था, ना यातायात और संचार के साधन थे, ना देश की सुरक्षा का पूरा इंतजाम। देश को सैकड़ों सियासतों ने सामंतशाही से मुक्त कराकर एक सूत्र में पिरोना ही अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी थी। अर्थात भारत की आजादी के साथ उस समय के अविकसित भारत में चुनौतियों का अंबार भी हमें मिला, जिसे कांग्रेस नेतृत्व ने दृढ़ संकल्प में अवसर में तब्दील कर दिया। एक मजबूत, शांतिप्रिय, समावेशी और प्रगतिशील भारत की नींव रखी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल व उनके सहयोगियों ने न केवल देश को एक सूत्र में पिरोया, बल्कि योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से खाद्यान्न, बांध एवं सिंचाई, बिजली घर, परमाणु ऊर्जा, सड़क, रेल, संचार, सुरक्षा, शिक्षण संस्थान, शोध संस्थान, कारखाने व ढांचागत विकास की बुनियाद भी खड़ी करी। पंडित नेहरू ने सार्वजनिक उपक्रमों, पीएसयूज, आईटीआई, आईआईएम, विश्वविद्यालयों, बड़े सिंचाई बांधों व परियोजनाओं, बड़ी स्टील फैक्ट्रियां, अंतरिक्ष परियोजनाओं, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, डीआरडीओ की स्थापना की व उन्हें आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी। 1960 और 1970 के दशक में कांग्रेस ने देश में हरित क्रांति का सूत्रपात किया, देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से देश के साधारण जनमानस के लिए बैंकिंग व्यवस्था के दरवाजे खोल दिए, भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाली ताकतों के दांत खट्टे कर दिए तथा बांग्लादेश के निर्माण में एक निर्णायक भूमिका निभाई। 1980 के दशक में एक बार फिर कांग्रेस ने 21वीं सदी के भारत की नींव रखी। एक तरफ दूरसंचार क्रांति का उदय हुआ, तो दूसरी तरफ पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देकर सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। कंप्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने आधुनिक भारत के निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाई, जिसके सुखद परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। 1990 के दशक में जब विपक्षी सरकारों ने भारत का सोना तक गिरवी रख अर्थव्यवस्था को जीर्ण शीर्ण कर दिया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बार फिर देश को आर्थिक उदारीकरण व वैश्वीकरण से जोड़कर भारत की तरक्की व अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। 2004 से 2014 तक का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकाल देश में सदैव समावेशी विकास, अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति, अधिकार संपन्न भारत व आम नागरिकों के सशक्तिकरण के मील पत्थर स्थापित करने के लिए जाना जाएगा। एक तरफ सत्ता त्याग देने की श्रीमती सोनिया गांधी जी की साहसिक कुर्बानी,
तो दूसरी ओर डॉक्टर मनमोहन सिंह की आर्थिक विद्वता ने देश को नई ऊंचाइयों पर ला करके खड़ा कर दिया। श्रीमती सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री राहुल गांधी जी के सामूहिक नेतृत्व व दूरदर्शिता ने एक अधिकार संपन्न भारत की संरचना की, जिसमें हर नागरिक को मनरेगा के तहत काम का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आदिवासी भाइयों को जल जंगल जमीन का अधिकार, किसानों को भूमि के उचित मुआवजे का अधिकार, नागरिकों को सरकार की जवाबदेही के लिए सूचना का अधिकार, ये सारे अधिकार मिले। एक तरफ देश ने पहली बार डिजिटल ग्रोथ को पार किया, डबल डिजिट ग्रोथ को पार किया, तो दूसरी तरफ 14 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उबर पाए। वह देश में एक सशक्त व प्रगतिशील मध्यम वर्ग तबके का उभार हुआ। देशवासियों ने आकांक्षाओं व तरक्की की नई बुलंदियां छुई। चारों तरफ सामाजिक सौहार्द भी था, शांति व भाईचारा भी था, प्रगति व तरक्की भी थी और आगे बढ़ते रहने की नई अभिलाषा भी थी। कई प्रकार के षड्यंत्रकारी ताकतों को अधिकार संपन्न भारत, सामाजिक सौहार्द व समावेशी विकास रास नहीं आया तथा दुष्प्रचार का एक कुचक्र रचकर नियोजित रूप से सत्ता अर्जित कर ली गई। पर पिछले 8 वर्ष में जैसे देश की तरक्की, प्रगति, सामाजिक सौहार्द, आकांक्षाओं व अपेक्षाओं को जानबूझ करके गहरे अंधकार में धकेल दिया गया है। कभी नोटबंदी के नाम पर देश के रोजगार व व्यवसाय पर हमला बोला गया, तो कभी मनमानी जीएसटी से छोटे छोटे और मंझले उद्योगों को तालाबंदी के कागार पर ला करके खड़ा कर दिया गया। कभी मनमाने लॉकडाउन से लाखों करोड़ों देशवासियों को सड़कों पर दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर किया, तो कभी कोरोना की विभीषिका में सरकार की नाकामी के चलते लाखों लोगों को तिल तिल कर दम तोड़ने पर मजबूर कर दिया। अहंकार की पराकाष्ठा तो यह थी कि लाशों से पड़ी गंगा मैया और उसके तट भी अहंकारी शासकों को नजर नहीं आए। यही नहीं, बीते 8 वर्षों में देश का नौजवान असहनीय बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। महंगाई की आग ने तो हर व्यक्ति व परिवार को झुलस करके रख दिया है। घर के लिए गैस का सिलेंडर खरीदना भी सपना हो गया है। पेट्रोल, डीजल, आटा, खाने का तेल, दाल, सब्जी, रोजमर्रा के इस्तेमाल की सभी चीजों की आसमान छूती कीमतों ने देशवासियों की जिंदगी दुर्भर कर दी है। बेरोजगारी और महंगाई अब देश के नागरिकों के लिए अभिशाप बन गए हैं। समाज का कोई वर्ग सत्तासीन सरकार की बेरुखी से अछूता नहीं रहा। जब 3 खेती विरोधी काले कानूनों के खिलाफ लाखों किसान सड़कों पर उतरे, तो सरकार ने उन्हें बर्बरता से मारा, उनकी राह में कील और कांटे बिछाए तथा उन्हें आतंकी तक घोषित कर डाला। दूसरी तरफ देश भयंकर आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। उद्योग धंधे चौपट पड़े हैं और सरकार बेपरवाह। 75 साल में पहली बार देश का रुपया बेदम और बेजार दिखाई पड़ता है। यहां तक कि $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 77 रुपए 50 पैसे पार कर गई है। अब तो 70 साल में बनाई देश की हर संपत्ति को मौजूदा सरकार द्वारा मनमाने तरीके से बेचा जा रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार ने इंडिया ऑन सेल का बोर्ड लगा दिया है। अपनी अक्षम्य नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए मौजूदा भाजपा सरकार ने देश में सांप्रदायिक वैमनस्यता का वातावरण निर्मित कर रही है। अल्पसंख्यकों, दलितों व गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है। भाजपा द्वारा धर्म व जाति के आधार पर नफरत के बीज बोकर सत्ता की भूख मिटाई जा रही है। भारत के बहुलतावाद, भाईचारे व समावेशी मूल्यों पर हमला बोला जा रहा है। भारत को जात पात, धर्म, खान पान, पहनावे, भाषा, क्षेत्रवाद और रंग के आधार पर विभाजित करने का कुत्सित संघर्ष षड्यंत्र हो रहा है। केंद्र की सत्तासीन सरकार व उसकी विचारधारा के कट्टरवाद व रूढ़िवादिता ने देश की अर्थव्यवस्था को हाशिए पर लाकर के खड़ा कर दिया है। यह सब देश के वर्तमान और भविष्य के लिए गंभीर खतरे की घंटी है। इन विषम परिस्थितियों व चुनौती के मद्देनजर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नव संकल्प शिविर का आयोजन किया। मौजूदा विभाजनकारी वातावरण में आम जनमानस को धार्मिक व जातीय बंटवारे के जाल में उलझाकर चुनावी हित साधने की राजनीति गहन चिंतन का विषय है। पार्टी ने 6 विषयों पर 6 समूहों का गठन किया। हर समूह में खुले मन से सभी साथियों ने प्रभावशाली सुझाव व विचार व्यक्त किए।
सभी समूहों ने अपने मंथन की विस्तृत रिपोर्ट आज कांग्रेस अध्यक्षा को सौंप दी। हाल में हुए चुनावों में अपेक्षाकृत परिणाम न आना, वह संगठन की खामियां तथा उसे जरूरी तब्दीलियां करने व जमीनी जुड़ाव को मजबूत करने पर गहन मंथन किया गया। खुले मन से त्रुटियों पर चर्चा हुई, भिन्न भिन्न विचारों पर मंथन हुआ, वैचारिक और नीतिगत मतभेद पर सभी दृष्टिकोण गहनता से देखे गए और बेहतरी के अनेकों सुझाव दिए गए। कांग्रेस के सब साथियों ने मिलकर आत्मचिंतन, आत्ममंथन व आत्म अवलोकन किया। एक नव संकल्प के साथ दृढ़ता से देश प्रेम व राष्ट्र निर्माण के पथ पर चलने, न्याय की परिपाटी पर हर हाल में खतरे से उतरने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष उत्पन्न मौजूदा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से जूझने व जीतने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। 6 विषयों पर समूहों की चर्चा से भविष्य के रास्ते के कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलकर सामने आए। अब मैं एक एक करके 6 महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर जो हमारी वर्किंग कमेटी ने इस ऐलान को अप्रूव किया है, वो मैं आप सब लोगों के सामने पढ़ करके सुनाऊंगा। सबसे पहले संगठन वह कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता ही पार्टी के असली ताकत हैं। संगठनात्मक स्तर पर कांग्रेस की निर्णायक भूमिका निभाने हेतु व्यापक विचार मंथन हुआ। इस मंथन के निष्कर्षों का सारांश यह है कि अगले 90 से 180 दिनों में देश भर में ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर सभी रिक्त नियुक्तियां संपूर्ण कर जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। संगठन को प्रभावी बनाने हेतु ब्लॉक कांग्रेस के साथ साथ मंडल कांग्रेस कमेटियों का भी गठन किया जाएगा। कांग्रेस संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर 3 नए विभाग यानी डिपार्टमेंट्स का गठन किया जाएगा। नंबर 1, पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट, ताकि भिन्न भिन्न विषयों पर जनता के विचार जानने व नीति निर्धारण हेतु तर्क संगत फीडबैक, साइंटिफिक फीडबैक कांग्रेस नेतृत्व को मिल सके। राष्ट्रीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग का गठन हो ताकि पार्टी की नीतियों, विचारधारा, दृष्टि, सरकार की नीतियां व मौजूदा ज्वलंत मुद्दों पर पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं का व्यापक प्रशिक्षण हो पाए। केरला स्थित राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज से इस राष्ट्रीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत करी जाएगी। तीसरा डिपार्टमेंट होगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्तर पर इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का गठन किया जाएगा ताकि हर चुनाव की तैयारी प्रभावशाली तरीके से हो व अपेक्षित परिणाम निकले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव संगठन के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन भी हो ताकि बेहतरीन काम करने वाले पदाधिकारियों को आगे बढ़ने का मौका मिले और निष्क्रिय पदाधिकारियों की छटनी की जा सके। पार्टी में लंबे समय तक एक ही व्यक्ति द्वारा पद पर बने रहने के बारे में कई विचार सामने आए। संगठन के हित में यह है कि 5 वर्षों से अधिक कोई भी व्यक्ति एक पद पर ना रहे ताकि नए लोगों को मौका मिल सके। यही नहीं, मौजूदा भारत के आयु वर्ग व बदलते स्वरूप के अनुसार यह आवश्यक है कि कांग्रेस की कार्य समिति, सेंट्रल वर्किंग कमेटी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश, जिला, ब्लॉक व मंडल पदाधिकारियों में 50% पदाधिकारियों की आयु 50 वर्ष से कम हो। राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, ब्लॉक व मंडल संगठनों की इकाई में सामाजिक वास्तविकता का प्रतिबिंब भी हो, यानी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों व महिलाओं को न्याय संगत प्रतिनिधित्व मिले इन सभी जगहों पे।
संगठन में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू हो। इसी प्रकार एक परिवार एक टिकट का नियम लागू हो। यदि किसी के परिवार में दूसरा सदस्य राजनीतिक तौर से सक्रिय है तो 5 साल के संगठनात्मक अनुभव के बाद ही वह व्यक्ति कांग्रेस टिकट के लिए पात्र माना जाए। उत्तर पूर्व के प्रांतों के लिए कांग्रेस की गठित की गई नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष को कांग्रेस कार्य समिति का स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों में से कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा एक समूह का गठन हो जो समय समय पर जरूरी व महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयों पर निर्णय लेने हेतु कांग्रेस अध्यक्ष को सुझाव दे व उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन में मदद करे। हर प्रांत के स्तर पर भिन्न भिन्न विषयों पर चर्चा करने व निर्णय हेतु एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन हर पीसीसी के अंदर किया जाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व पीसीसी कमेटियों का सत्र साल में एक बार अवश्य हर साल आयोजित किया जाए। इसी प्रकार जिला, ब्लॉक व मंडल कमेटियों की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाए। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हर जिला स्तर पर 9 अगस्त से 75 किलोमीटर लंबी पद यात्रा का आयोजन हो, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के लक्ष्यों व त्याग तथा बलिदान की भावना भी प्रदर्शित हो। बदलते परिवेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया व संचार विभाग के अधिकार क्षेत्र, कार्य क्षेत्र व ढांचे में बदलाव कर व्यापक विस्तार किया जाए तथा मीडिया, सोशल मीडिया, डेटा रिसर्च, विचार विभाग आदि का संचार विभाग से जोड़ विशेषज्ञों की मदद से और प्रभावी बनाया जाए। प्रदेशों के सभी मीडिया, सोशल मीडिया, रिसर्च आदि विभागों का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के अंतर्गत रख सीधा जुड़ाव बने ताकि पार्टी का संदेश प्रतिदिन देश के कोने कोने में फैल सके। दूसरा महत्वपूर्ण राजनीतिक समूह ने जो कहा और जो वर्किंग कमेटी ने जिसको अप्रूव किया वो ये है, राजनीतिक समूह ने मौजूदा विषम परिस्थितियों में भारतीयता की भावना व वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों को हर कांग्रेस जन द्वारा आत्मसात करने पर बल दिया। भारतीय राष्ट्रवाद ही कांग्रेस का मूल चरित्र है और इसके विपरीत भाजपा का छद्म राष्ट्रवाद सत्ता के भूख पर केंद्रित है। हर कांग्रेस जन का कर्तव्य है कि वह इस अंतर को जन जन तक पहुंचाए। आज सत्तासीन दल द्वारा भारतीय संविधान, उसमें निहित सिद्धांतों व अधिकारों तथा बाबा साहब अंबेडकर की सोच पर षड्यंत्रकारी हमला बोला गया है। संवैधानिक अधिकारों पर आक्रमण का पहला आघात देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं व गरीबों को पहुंचा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संकल्प है कि सभी कांग्रेस जन गांधीवादी मूल्यों व नेहरू जी की आजाद भारत के सिद्धांत की रक्षा हेतु हर हालत में संघर्षरत रहेंगे। साथ साथ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाली सभी संवैधानिक संस्थाओं को भी सत्ता के हित साधने के लिए कमजोर व निष्प्रभावी बना दिया गया है। इन विघटनकारी ताकतों से लोहा लेने हेतु कांग्रेस संगठन के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, गैर सरकारी संगठनों, ट्रेड यूनियन, थिंक टैंक व सिविल सोसाइटी समूहों से व्यापक संपर्क और संवाद स्थापित करेगी। जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपने संगठन की शक्ति व बलबूते के आधार पर हर जगह जमीनी पकड़ पैदा करनी है, वहीं राष्ट्रीयता की भावना व प्रजातंत्र की रक्षा हेतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभी समान विचारधारा के दलों से संवाद व संपर्क स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है तथा राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप जरूरी गठबंधन करने के रास्ते खुले रखेगी। भारत की संप्रभुता व भूभागीय अखंडता पर चीन द्वारा अतिक्रमण को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लद्दाख में भारतीय सैनिकों की शहादत को हम सलाम करते हैं। इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित न होना व प्रधानमंत्री की रहस्यमयी चुप्पी देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। कई दौर की वार्ता के बावजूद
चीन द्वारा भारत की सरजमीन से अनधिकृत कब्जा न छोड़ना अपने आप में भारत की अखंडता को चुनौती है। भाजपा द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा से किया जा रहा यह खिलवाड़ अस्वीकार्य है। उत्तर पूर्व के शांति प्रिय प्रांतों में अलगाव व उग्रवाद का विस्तार अति चिंताजनक है। राजनीतिक स्वार्थों हेतु असम, मिजोरम, मेघालय सीमा विवाद, नागालैंड, मणिपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का लंबे समय तक बंद रहना, रहस्यमयी नागा शांति समझौते का 2019 से क्रियान्वयन न हो पाना, वह पूरे उत्तर पूर्व में सत्ता प्राप्ति हेतु सामाजिक व राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा कर देना भाजपा की नाकामियों को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर के विशेष स्थिति बदल पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लेना, प्रांत को केंद्र शासित दर्जे में तब्दील कर देना, प्रांतीय विधानसभा की बहाली न कर चुनाव न करवाना, जम्मू कश्मीर के लोगों से वोट का अधिकार छीन लेना, जम्मू कश्मीर में त्रुटिपूर्ण डिलिमिटेशन लागू करना, अस्थिरता व सुरक्षा के माहौल के चलते उग्रवादियों द्वारा सुरक्षा बलों व कश्मीरी पंडितों सहित हजारों मासूम नागरिकों को निशाना बनाकर उनकी हत्या करना अपने आप में केंद्र सरकार की गंभीर नाकामी का परिचायक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कड़े शब्दों में भाजपा आरएसएस द्वारा देश में सांप्रदायिक विभाजन फैलाने के एजेंडा की निंदा करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस धर्म, भाषा, जाति, रंग व क्षेत्रवाद के आधार पर अल्पसंख्यकों, गरीबों व वंचितों को निशाना बना वोट बटोरने की राजनीति का सिरे से खंडन करती है। केंद्र सरकार द्वारा देश के संघीय ढांचे पर हमला तो और भी खतरनाक है। बार बार प्रांतों के अधिकार क्षेत्र पर गैर कानूनी व अनैतिक अतिक्रमण करना भाजपाई सत्ता का स्वभाव बन गया है। जहां तक कि राज्यपाल के पद का दुरुपयोग अब भाजपाई सत्ता सिद्धि के लिए खुलेआम करते हैं। वह संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। राष्ट्र हित में इन सब अनैतिक कृत्यों को भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी। अब आर्थिक समूह का आर्थिक समूह ने व्यापक विचार विमर्श के बाद भारत के लिए नव संकल्प आर्थिक नीति बनाने व लागू करने की कवायद की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1990 के दशक में किए अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से हुए अभूतपूर्व फायदे का संज्ञान लेते हुए एक ऐसी उदारीकरण केंद्रित अर्थव्यवस्था के गठन को प्रोत्साहित करने की प्रस्तावना की गई, जिसमें निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका तो रेखांकित की जाए, पर साथ साथ सशक्त व व्यवहारिक सार्वजनिक उपक्रमों की संरचनात्मक भूमिका भी बनी रहनी चाहिए। उदारीकरण के 30 वर्षों के बाद तथा घरेलू व वैश्विक परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए स्वाभाविक तौर से आर्थिक नीति में बदलाव की आवश्यकता जरूरी है। इस नव संकल्प आर्थिक नीति का केंद्र बिंदु रोजगार सृजन हो। आज के भारत में जॉबलेस ग्रोथ का कोई स्थान नहीं हो सकता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मोदी सरकार की रोजगार विहीन आर्थिक नीतियों को सिरे से खारिज करती है। हमारा मानना है कि जो आर्थिक नीति नए रोजगार पैदा करने पर केंद्रित होगी, वही देश में उच्च विकास दर ला सकती है। नव संकल्प आर्थिक नीति के लिए अनिवार्य है कि वह देश में फैली हुई अत्यधिक गरीबी, भुखमरी, चिंताजनक कुपोषण, खास तौर से महिलाओं व बच्चों में वह भीषणतम आर्थिक असमानता का निराकरण कर सके। भाजपा सरकार द्वारा 70 सालों में बनाई गई सरकारी संपत्तियों का अंधाधुंध निजीकरण अपने आप में खतरनाक है। यह और गंभीर हो जाता है जब भाजपा सरकार पब्लिक सेक्टर कंपनियों को बदनीयती से आधे औने पौने दामों पर अपने चंद और चहेते पूंजीपति मित्रों को बेच रही है। न केवल दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो रहा है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था पर कुछ लोगों का एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास भी हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस अंधाधुंध निजीकरण का घोर विरोध करेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मानना है कि जन कल्याण ही आर्थिक नीति का सही आधार हो सकता है। भारत जैसे तरक्कीशील देश में जन कल्याण नीतियों से आम जनमानस के लिए रोजगार सृजन व आय के साधन बढ़ाना अनिवार्य व स्वाभाविक है। नव संकल्प आर्थिक नीति के तहत
केंद्र व प्रांतीय सरकारों के बिगड़ते हुए वित्तीय संबंधों का संज्ञान लेने की आवश्यकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुताबिक अब समय आ गया है जब केंद्र व प्रांतों के बीच वित्तीय संबंधों की पुनर्समीक्षा हो और प्रांतों के अधिकारों की संरक्षण व सुरक्षा भी हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विश्वास है कि हमें भारत की अर्थव्यवस्था व वर्कफोर्स को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना है। भारत की चुनौतियों में बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था भी है तथा बदलती आधुनिक तकनीक जैसे रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के अनुरूप देश के वर्कफोर्स को ढालना भी है। नई अर्थव्यवस्था में देश व दुनिया में हो रहे जलवायु परिवर्तन का संज्ञान लेना भी अनिवार्य है। नव संकल्प आर्थिक नीति एक निष्पक्ष, न्यायपूर्ण व समानता के सिद्धांत पर आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करेगी जिसमें सभी वर्गों को मौके व आर्थिक प्रगति के अवसर मिल पाएंगे। अब किसान व खेत मजदूर समूह। किसान व खेत मजदूर समूह ने देश में भाजपा सरकार निर्मित मौजूदा कृषि संकट का गहन संज्ञान लेते हुए कई महत्वपूर्ण विषयों और नीतियों पर पुनर्विचार की आवश्यकता पर बल दिया। कर्ज के दलदल में फंसे देश के अन्नदाता पर 31 मार्च 2021 तक 16.80 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ गया था। केंद्र सरकार ने 8 वर्षों में किसान की कर्ज मुक्ति हेतु पूर्णतः उदासीन व बेरुखी दिखाई है। वक्त की मांग है कि राष्ट्रीय किसान ऋण राहत आयोग का गठन कर कर्ज माफी से कर्ज मुक्ति तक का रास्ता तय किया जाए। कर्ज ना लौटा पाने की स्थिति में किसान के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई तथा किसान की खेती की जमीन की कुर्की पर पाबंदी लगाई जाए तथा खेतीहर किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध हो। किसानों की एक और सबसे बड़ी समस्या फसल की कीमत ना मिलना है। आजाद भारत के सबसे बड़े किसान आंदोलन के बाद मोदी सरकार द्वारा एमएसपी की गारंटी पर विचार करने हेतु कमेटी बनाने का वायदा तो किया पर कुछ नहीं हुआ। किसान संगठनों की न्यायोचित मांग है कि केंद्र सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी दे तथा किसानों को एमएसपी का निर्धारण कर C2 + 50% के आधार पर हो, यानी एमएसपी निर्धारित करते हुए किसान को कॉस्ट ऑफ कैपिटल व जमीन का किराया जोड़कर 50% अधिक दिया जाए। यह कांग्रेस पार्टी की मांग है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी असलियत में निजी बीमा कंपनी मुनाफा योजना बन गई। निजी बीमा कंपनियों ने पिछले 6 वर्षों में 34,304 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, पर किसान को कोई लाभ नहीं मिला। वक्त की मांग है कि खेती के पूरे क्षेत्र का बीमा किया जाए व नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर बीमा योजना का संचालन सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां करें। किसान कल्याण के लिए यह भी आवश्यक है कि कांग्रेस के 2019 के घोषणा पत्र के अनुरूप एक अलग कृषि बजट संसद में प्रस्तुत हो जिसमें किसान कल्याण की सभी परियोजनाओं का लेखा जोखा दिया जाए। मौसम की मार, प्राकृतिक आपदा, बाजारी मूल्यों में उतार चढ़ाव आदि को देखते हुए किसान को राहत देने हेतु राष्ट्रीय किसान कल्याण कोष बनाया जाए। किसान के ट्रैक्टर व खेती के अन्य उपकरण जीएसटी की परिधि से मुक्त किए जाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साल 2019 के घोषणा पत्र में अंकित न्याय के सिद्धांत को हर किसान व खेत मजदूर परिवार पर लागू कर हर माह प्रति परिवार को 6,000 रुपए हस्तांतरण हो। छोटे व सीमांत किसानों व भूमिहीन गरीबों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए यही एक उपाय है। वक्त की यह भी मांग है कि कृषि उपज मंडियों की संख्या मौजूदा 7,600 से बढ़ाकर 42,000 की जाए ताकि हर 10 किलोमीटर पर एक कृषि उपज मंडी की स्थापना करी जा सके। ग्रामीण रोजगार व गरीबी उन्मूलन के लिए मनरेगा ही एकमात्र उपाय है। दुर्भाग्यवश केंद्र सरकार, भाजपा सरकार ने कोरोना की विषम परिस्थितियों के बावजूद मनरेगा के बजट में कटौती कर डाली है। मनरेगा में हर व्यक्ति को जहां 100 दिन का काम देना अनिवार्य हो, वहां यह जरूरी है कि मनरेगा मजदूरी को न्यूनतम मजदूरी के बराबर लाकर सालाना औसत आमदनी को 18,000 रुपए किया जाए। अब सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण समूह।
सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण समूह ने देश के शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, गरीबों व अल्पसंख्यकों के साथ षड्यंत्रकारी अन्याय व भेदभाव पर विस्तृत चिंतन किया तथा इन समूहों की आवाज व मांग कांग्रेस संगठन के माध्यम से देश भर में उठाने का संकल्प लिया। इस संकल्प का सबसे पहला कदम केंद्र व प्रांतीय सरकारों के बजट में SC/ST सब प्लान को कानूनी मान्यता के साथ फिर से पुनः शुरू करना है। महिला सशक्तिकरण हेतु संसद, विधानसभाओं में व विधान परिषदों में 33% महिला आरक्षण का संवैधानिक संशोधन भी जल्द से जल्द पारित हो तथा हर वर्ग की महिला को अनुपातित आरक्षण का लाभ मिले। मजदूरों के संगठन के सशक्तिकरण हेतु कारगर कदम उठाने का संकल्प भविष्य के भारत के लिए अनिवार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा SC/ST आरक्षित संसदीय व विधानसभा क्षेत्रों में वंचित वर्गों के लिए नए नेतृत्व के निर्माण हेतु लीडरशिप मिशन चलाए जाने का संकल्प लिया गया है। भाजपा प्रायोजित व मनस से पूर्ण माहौल के चलते यह भी अनिवार्य है कि अल्पसंख्यकों, SC/ST, OBC व मोहल्लों में कांग्रेस पार्टी एक विशेष सद्भावना मिशन चलाकर समरसता का भाव पैदा करे। SC/ST, OBC व अल्पसंख्यक समुदायों की आवाज पुरजोर तरीके से उठाने, उनकी समस्याओं पर फोकस करने व उनके नेतृत्व को उचित स्थान देने हेतु अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सामाजिक न्याय सलाहकार परिषद का गठन हो, जो कांग्रेस अध्यक्ष को इस बारे में सुझाव समय समय पर दे सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदिवासियों के लिए एक विशेष हेल्थ मिशन बनाने व आदिवासियों के पट्टे की सुरक्षा करने को संकल्पबद्ध है। कांग्रेस कार्य समिति प्रदेश व जिला कांग्रेस कमेटीज की हर 6 महीने में एक बैठक SC/ST, OBC, अल्पसंख्यक व महिला मुद्दों पर केंद्रित हो। नई शिक्षा नीति को लेकर व्यापक मंत्रणा हुई। विशेषता यह चिन्हित किया गया कि नई शिक्षा नीति के प्रावधान स्वाभाविक तौर से गरीबों व शोषित वर्गों के बच्चों को बराबरी के अधिकार से वंचित करते हैं तथा अमीर गरीब की खाई को और बढ़ाने वाले हैं। कांग्रेस UPA सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों की जातीय जनगणना के आंकड़ों को जानबूझकर के केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे सीधा लक्ष्य पिछड़े वर्गों को उनके अधिकारों से वंचित करना है। हमारा संकल्प है कि जातीय जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक निर्णायक संघर्ष करेगी और पिछड़े वर्गों को उसका अधिकार दिला करके रहेगी। अब अंत में युवा समूह। युवा समूह ने महंगी शिक्षा, गरीब और अमीर के बच्चों में कोरोना की विभीषिका के बाद पैदा हुए भीषण डिजिटल डिवाइड व बेतहाशा बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं की असहनीय पीड़ा पर चिंता व्यक्त करते हुए इस खाई को पाटने के बारे में विस्तृत चर्चा की। भाजपा निर्मित बेरोजगारी के दंश से लड़ने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोजगार दो पदयात्रा का प्रस्ताव किया गया, जिसकी शुरुआत आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने पर 15 अगस्त 2022 से होगी। स्कूलों में लागू किए गए शिक्षा के अधिकार कानून के तर्ज पर गरीबी विद्यार्थियों के लिए कॉलेज व विश्वविद्यालयों में भी निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हो। गरीब और अमीर के बच्चों में पैदा हुई अप्रत्याशित डिजिटल डिवाइड की खाई का केंद्र सरकार स्थायी समाधान करे व प्रांतों की मदद करे। सभी सरकारी विभाग, भारत सरकार के उपक्रम व तीनों सेनाओं में पड़े खाली पद अगले 6 महीनों में विशेष भर्ती अभियान चला करके भरे जाएं। संगठनात्मक स्तर पर 50% पद 50 साल से कम उम्र के साथियों को मिलने चाहिए। युवा समूह ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि संसद, विधायिकाओं, विधान परिषद व सभी चुने हुए पदों पर रिटायरमेंट की उम्र की एक सीमा तय की जाए। भविष्य में पार्टी की सरकारों में सभी पदों पर 50 वर्ष से कम आयु के 50% व्यक्ति हों। उससे अधिक उम्र के तजुर्बेकार लोगों का फायदा पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए भी लिया जाए। 2024 के संसदीय लोकसभा चुनावों से शुरुआत कर
उसके बाद के सभी सांसद, विधायिकाओं, विधान परिषदों व अन्य स्तरों पर कम से कम 50% टिकट 50 वर्ष से कम की आयु के साथियों को दिए जाएं। पार्टी के नेताओं द्वारा गैर राजनीतिक गतिविधियों में अग्रणी भूमिका व सक्रियता निभाई जाए, जैसे कि यूथ फेस्टिवल, सांस्कृतिक आयोजन, खेल आयोजन, यूथ पार्लियामेंट, विषय विशेष पर टाउन हॉल मीटिंग व ब्लड डोनेशन कैंप आदि। इससे भी युवा वर्ग में पार्टी के फैलाव व विस्तार को मदद मिलेगी। ठीक 80 वर्ष पहले साल 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। साल 2022 का नारा है भारत जोड़ो। यही है उदयपुर का नव संकल्प, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। जय हिंद। अब मैं अनुरोध करूंगा आज के हमारे बीच में मुख्य वक्ता समापन भाषण देने के लिए कांग्रेस के कार्य समिति द्वारा यह रेजोल्यूशन जो हमारा उदयपुर ऐलान है, डिक्लेरेशन है, ये सब आप लोगों के सामने है और आप सब लोगों में से जो इसको अनुमोदित करना चाहते हैं सब हाथ खड़ा करके खड़े होकर के ये उदयपुर डिक्लेरेशन पास हुआ। भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। अब मैं अनुरोध करता हूं हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को कि वो आए और हम सब लोगों को संबोधित करें। आगे कि पीछे? थोड़ा आगे कर, थोड़ा सा बस है। अशोक गहलोत जी, PCC chief, Dotasara ji, members of the working committee, colleagues, friends. So we have come to the end of this Chintan Shivir. On your behalf and on my own, I want to thank Ashok Gehlot ji, Govind Singh Dotasara ji, and all their colleagues who work hard for hosting us here and making such excellent arrangements. Thank you. I feel it has been a very useful and productive Shivir. So many of you have had an opportunity to express your views and offer suggestions in a spirit of constructive participation. I, of course, had received some summary of discussion in each of the 6 groups, and these will inform our party's position, policies and programs. They will also be of value to prepare our manifestos for state and national elections. I want to make a special mention of the report of the organizational group, since it is the most immediately relevant. Some of these ideas and ideas from other groups have formed part of the
Udaipur Navsankalp Declaration that has just been adopted. I assure you that the detailed recommendation of the group, some of them are not in the Sankalp, will be acted upon expeditiously. We will undoubtedly leave re-energized with the refreshed spirit of collective purpose. Before we do that, let me make the following 4 specific announcements in addition to the Navsankalp that has just been adopted. So we will launch a national Kanyakumari to Kashmir Bharat Jodo Yatra, beginning on Gandhi Jayanti this year. All of us, young and old, will participate in it. Seniors will have to find ways to accommodate seniors like me in this, on how to easily participate in the yatra without having to run out of breath and God knows what else. The yatra is to strengthen the bonds of social harmony that under severe stress and to preserve the foundational values of our Constitution that are under assault, and also to highlight the day-to-day concerns of crores of our people, as Rahulji has mentioned in his speech. Meanwhile, phase 2 of the district-level Jan Jagran Abhiyan that had been launched earlier will resume a month later on the 15th of June. Very hot time, but it will. The extensive campaign will highlight economic issues, especially the growing unemployment and intolerable price rise that is destroying livelihood. A compact task force will be set up to drive the process of internal reforms that are essential and that have been discussed in different groups here at Udaipur. These reforms will focus on the 2024 Lok Sabha polls, will cover all aspects of the organization, including structure, rules for appointments to party posts, communications and publicity, outreach, finances, and election management. The composition of the task force will be notified in the next 2-3 days. I have also decided to have an advisory group drawn from the CWC that would meet regularly under my chairpersonship to discuss and deliberate upon political issues and challenges before our party. Of course, we do have the CWC that meets from time to time, and that will continue. Hopefully, a little more often than it does normally. Now, the new group is not, however, a collective decision-making body, but will help me get the benefit of the vast experience of senior colleagues. It too will be notified very soon. Throughout these 3 days, you have also had the opportunity to get to know each other, to meet and interact with each other. And as for myself and many others, I had the opportunity, I was able to sit through all 6 groups and listen to some of the speakers. Now,
I want to end with a personal note, and that is last night I came away from the dinner so graciously hosted by Ashok Gehlot ji, feeling that I had spent the evening with my family. And my larger family. And I was very touched when some of younger colleagues, guests and colleagues, shared the same view. And so I very much hope that this is the spirit in which we will disperse from this Chintan Shivir. So, my friends and colleagues, let me wish you all the very best. We will overcome. We will overcome. We will overcome. That is our determination. That is our Nav Sankalp. Thank you. Jai Hind. साथियों, इससे पहले कि रघुवीर मीना जी यहां पर आकर के धन्यवाद का अभिभाषण दें और राष्ट्रगान हो, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा यहां पे करना चाहता हूं। आप सब लोग जरा अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है कि आप सब लोगों को पता है कि इसके बाद ग्रुप फोटोग्राफ होगा। हम सभी लोगों का ये ऐतिहासिक क्षण है जिसको हम लोग कैमरा में सब लोग मिलकर के कैद करना चाहते हैं और हम सब एक साथ ग्रुप फोटोग्राफ कराएंगे, उसकी व्यवस्था की गई है। और उस व्यवस्था, गर्मी का माहौल है इसलिए हम लोग उसको ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहते हैं। तो सबसे पहले NSY IYC सेवा दल और चेयरमैन डिपार्टमेंट्स और सेल के लोग जाएं, वो भी तब जब हम यहां से बोलें। उसके बाद में फिर एक्स PCC प्रेसिडेंट्स और स्पोक्स पर्सन्स, फिर उसके बाद में MPs, AICC सेक्रेटरीज और एक्स यूनियन और स्टेट मिनिस्टर्स फिर उसके बाद जाएंगे और फिर उसके बाद CWC मेंबर्स, एक्स CM, PCC प्रेसिडेंट और CLP लीडर जाएंगे। एक एक करके हम लोग जब बोलेंगे तभी वही लोग जाएं, क्योंकि वहां गर्मी बहुत है। हम नहीं चाहते कि वहां पे कंफ्यूजन हो और बाहर कार्ट्स का भी इंतजाम है, बगीचे का इंतजाम है, तो सब एक एक करके जाएं और सभी के सभी लोग जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं सब एक एक करके जाएं। अब मैं अनुरोध करूंगा रघुवीर मीना जी को, CWC के मेंबर हैं, कि संक्षिप्त में यहां आकर के धन्यवाद। आप सबको मेरा प्रणाम। आदरणीय हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय गुलाम नबी जी, आदरणीय अंबिका सोनी जी, आदरणीय खड़गे साहब, हमारी सबकी दीदी प्रियंका जी, वेणुगोपाल जी साहब, अजय माकन जी हमारे इंचार्ज साहब, अधीर रंजन चौधरी साहब, पी चिदम्बरम साहब, आनंद शर्मा साहब, हुडा साहब, दिग्विजय सिंह जी साहब, पवन बंसल साहब, ओमन चांडी साहब और हमारे मुख्य आयोजक अशोक गहलोत साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय, मेहमान मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल साहब, मुकुल वासनिक साहब, आदरणीय CWC के सम्मानित सभी सदस्य साहिबान, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा जो होस्ट भी हैं, 6 कमेटियों के सभी सदस्य साहिबान, 6 कमेटी के चेयरमैन साहिबान जो इस सभी डिक्लेरेशन को तैयार करने में मुख्य भूमिका अदा की है, अग्रिम संगठनों और डिपार्टमेंटों के सभी चेयरमैन साहिबान,
सभी सहभागी जिन्होंने इस महत्वपूर्ण नव संकल्प शिविर में भाग लिया और अपने कीमती सुझाव दिए हैं, सभी मीडिया के प्रभारी और मीडिया के साथीगण जिन्होंने अच्छा संकल्प दिखाया हमारा, राजस्थान सरकार के सभी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान किया, सभी होटल मैनेजमेंट के प्रमुख कर्मचारी साथियों जिन्होंने आत्मीय स्नेह के साथ सेवा की है, ट्रांसपोर्टेशन के सभी सहयोग करने वाले साथीगण जिन्होंने हमारे मेहमानों को सुविधा प्रदान की है, पुलिस के सभी अधिकारी और जवान जिन्होंने कानून व्यवस्था में पूरा सहयोग किया है। यह नव संकल्प शिविर जनजाति बाहुल्य ट्राइबल सब प्लान एरिया उदयपुर में आयोजित हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी का दिल की गहराइयों से यहाँ रहने वाले 64,64,000 निवासियों की तरफ से आपका दिल से आभार कि आपने महाराणा प्रताप की संघर्षपूर्ण भूमि, मीराबाई की तपस्या की भूमि, भील सरदार राणा पूंजा की पवित्र भूमि पर यह आयोजन करा के हम सबको गौरवान्वित किया है। और यहाँ से जो घोषणा हुई है, जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, ये इतिहास में के पन्नों में लिखा जाएगा और हमारे इस शहर उदयपुर का नाम भी लिखा जाएगा। मुझे सबसे बड़ा गौरव इस बात का है कि ये मेरा चुनाव क्षेत्र, लोकसभा चुनाव क्षेत्र भी रहा है, यहाँ से मैं सांसद भी रहा हूँ और आपकी कृपा से एक आदिवासी को CWC में स्थान दिया है। ये हमारे सबके लिए, पूरे देश के आदिवासियों के लिए गौरव की बात है। हम आपको यही विश्वास दिलाना चाहते हैं, पूरे देश के ये कार्यकर्ता जिनको आपने ऊर्जा दी है, ये पूरी ऊर्जा के साथ आपके साथ हैं। आपको कहीं व्यक्तिगत परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं, आप कमांडर का काम करिए, सेना ये बैठी है, ये सेना आगे लड़ेगी। एक बार पुनः सभी मेहमानों को निवेदन करना चाहता हूं कि कोई किसी तरह की कोई त्रुटि रही हो, क्षमा प्रार्थी हैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से, अध्यक्ष जी की तरफ से और मेरे व्यक्तिगत तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप सबको क्षमा प्रार्थना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों, इससे पहले कि मैं राष्ट्रगान के लिए सेवा दल के साथियों से अनुरोध करूं, मेरे साथ मिलकर के आज के इस सभा का सबसे महत्वपूर्ण 2 शब्द हम सब लोग जोर से नारा लगा करके कम से कम 3 बार जरूर बोलें। भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। अब मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान। सभा कक्ष सावधान, राष्ट्रगान शुरू करेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा ग्रामीण उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। आजाद हिंद जिंदाबाद, कौमी नारा वंदे मातरम। धन्यवाद। जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, भारत जोड़ो। थैंक यू। अब मैं अनुरोध करूंगा NSY, IYC, महिला कांग्रेस, सेवा दल और चेयरमैन सभी डिपार्टमेंट्स और सेल के कि वो सबसे पहले जाएं।